آج ہم کچھ خاص قرآنی آیات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا ذکر سورۃ الملک آیت 5 اور سورۃ الحجر آیات 16 سے 18 میں ملتا ہے۔ ان میں کہا گیا ہے کہ آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میزائل ہوں۔ تو یہ موضوع کافی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں مذہب، پرانی تفسیریں، آج کی سائنس اور کچھ تنقیدی نظریات بھی آ جاتے ہیں۔ آج کوشش یہی ہے کہ ان سب پہلوؤں کو ذرا سمجھیں، دیکھیں کہ آیات کا اصل مطلب کیا تھا، وقت کے ساتھ کیا سمجھا گیا، آج کل کیا بحث ہے اس پر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ مطلب 7ویں صدی میں جب یہ نازل ہوئیں تو لوگ کیا سمجھے، پھر علماء نے کیا مطلب نکالا، اور آج جب سائنس بہت آگے ہے تو اب کیا صورتحال ہے۔ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں کہانی کے کئی رخ دکھاتے ہیں۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے آیات خود کیا کہتی ہیں۔ سورۃ الملک 67.5 میں ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اور سورۃ الحجر 15 سے 16 سے 18 میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آسمان میں برج ہیں، سجاوٹ ہے اور ہر شیطان مردود سے حفاظت ہے، مگر جو چوری سے سننے لگے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ یہ شہاب مبین والی بات۔ جی، اب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ان آیات کا مقصد کوئی ایسٹرو فزکس کا لیکچر دینا نہیں تھا، وہ بھی 7ویں صدی میں۔ ان کا ایک گہرا مذہبی، آپ کہہ لیں کائناتی پیغام تھا اس وقت کے معاشرے کے لیے۔ اچھا، تو وہ فوری پیغام کیا تھا، کیا مقاصد تھے؟ ذرائع کو دیکھیں تو 4 خاص باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کائنات میں ایک سسٹم ہے، ایک نظم ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ دنیا ایسے ہی نہیں چل رہی، اللہ نے اسے بنایا ہے، سجایا ہے اور محفوظ بھی کیا ہے۔ یہ چیز توحید یعنی اللہ ایک ہے، اس خیال کو پکا کرتی ہے۔ صحیح، کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ بالکل۔ دوسرا مقصد تھا یہ بتانا کہ اللہ کے رازوں تک یعنی آسمانی باتوں تک شیطانوں کی پہنچ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یہ کہانیاں عام تھیں کہ جنات ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہ آسمان پہ جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے یہ۔ اور پھر آ کر کہانوں کو بتاتے ہیں۔ تو قرآن نے اس خیال کو لیا اور ایک طرح سے اس کو رد کیا، کہا کہ ہاں وہ کوشش تو کرتے ہیں پر آسمان محفوظ ہے، انہیں ان ستاروں یا شعلوں سے مار بھگایا جاتا ہے، گویا ایک آسمانی سیکیورٹی سسٹم ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا دلچسپ ہے کہ پرانے تصور کو ہی استعمال کر کے نئی بات کہہ دی۔ تیسرا پوائنٹ اسی سے جڑا ہے، وہ یہ کہ جو وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے وہ بالکل خالص ہے۔ جب شیطان آسمانی خبر چرا ہی نہیں سکتے تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا پیغام سیدھا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، یعنی وحی کی حفاظت کا اعلان۔ اور چوتھی بات جو شاید سب سے عملی تھی اس زمانے میں، وہ تھی کاہنوں اور نجومیوں کی دکان بند کرنا۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہمیں جنات خبریں لا کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا بھائی آسمان تو سیل ہے، شیطان مارے جاتے ہیں، تو تمہاری خبریں کہاں سے آ گئیں؟ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے جو وہ وحی سے بتاتا ہے، کاہن تو بس تکے مارتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ فوری طور پر ان آیات کا کیا مطلب سمجھایا جا رہا تھا۔ اچھا، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جو پرانے بڑے مفسرین ہیں، امام طبری، ابن کثیر، قرطبی، انہوں نے ان آیات کو کیسے سمجھا؟ کیا وہ لفظی مطلب ہی لیتے تھے؟ جی ہاں، زیادہ تر جو کلاسیکی مفسرین ہیں وہ اپنے زمانے کے حساب سے جو بھی ان کی کائنات کی سمجھ تھی اس کے مطابق ان آیات کو کافی حد تک لفظی طور پر ہی لیتے تھے۔ مطلب وہ واقعی مانتے تھے کہ شیطان اوپر جاتے ہیں اور ان پر ستارے پھینکے جاتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا یہی ماننا تھا کہ شیاطین یعنی جو سرکش جن ہیں وہ آسمانوں کی طرف اڑ کر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر آنے والے واقعات کے بارے میں۔ اچھا، اور فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے محافظ ہیں، وہ ان شیطانوں کو بھگانے کے لیے ستارے یا ستاروں سے نکلنے والے شعلے، جنہیں قرآن نے شہب کہا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین نے شہب سے مراد شہاب ثاقب یعنی ٹوٹتے تارے، میٹیورز ہی لیا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شیطان تھوڑا بہت سن لیتا ہے، چوری شدہ سماعت، اس کی کیا وضاحت کی انہوں نے؟ ہاں، وہ اس طرح کو سما کا مسئلہ۔ کلاسیکی علماء یہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شیطان اس سے پہلے کہ وہ شعلہ اسے لگے
एक आध लफ्ज या बात उचक लेता था, फिर वो भागकर जमीन पर आता, अपने एजेंट यानी काहन तक वो बात पहुंचाता, लेकिन उस एक सच्ची बात में 100 झूठ अपनी तरफ से मिला देता था। ओह अच्छा। इसीलिए उनके मुताबिक कहानों की बातें कभी-कभी थोड़ी बहुत सच लगती थीं, मगर ज्यादातर झूठ होती थी। तो उनकी तफसीर का भी मरकज यही था कि वही महफूज है और काहन गलत है, ना कि आसमान की साइंस बताना। बिल्कुल, उनका सारा जोर एक रूहानी निज़ाम समझाने पर था। फरिश्ते, जिन, शैतान, वही, नबूवत, गैब, ये सब कैसे काम करता है। उनके लिए ये एक हकीकी जंग थी जो आसमानों में हो रही थी, ताकि ज़मीन पर अल्लाह का पैगाम खालिस रहे। ठीक है, ये तो हो गई पुराने उलमा की बात। अब आते हैं आज के दौर में। आज हमारे पास फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, कायनात की समझ बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब ये आयात कैसे देखी जाती हैं? क्या आज की साइंस और इन आयात की मतलब लफ्ज़ी तशरीह में कोई टकराव है? ख़ास तौर पर ये ख्याल कि सितारे मिसाइल हैं। हाँ, देखें, आज की जो साइंस है, ख़ास तौर पर फुल्कियात, उसके हिसाब से अगर आप लफ्ज़ी मतलब लें कि सितारे मिसाइल हैं, तो ये बात साइंसी तौर पर मुमकिन नहीं लगती। क्यों मुमकिन नहीं लगती? क्या वजूहात हैं? सबसे बड़ी वजह तो है साइज और फासला। सितारे जैसे अपना सूरज है, ये इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और हमसे अरबों खरबों मील दूर है। अब ये सोचना कि इतनी बड़ी चीज़ इतनी दूर से ज़मीन के पास किसी नज़र न आने वाली मखलूक को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये फिजिक्स के क़वानीन के बिल्कुल खिलाफ है। बात तो सही है, साइज और फासला ही बहुत ज़्यादा है। जी, दूसरी बात खुद सितारों की नेचर है। सितारे क्या हैं? गैस के दहकते हुए गोले हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है उनमें। वो कोई पत्थर या तीर थोड़ी हैं कि किसी पर फेंके जाएं। और वो जो शिहाबे साकिब का जिक्र था, टूटते तारे? बिल्कुल, तीसरा पॉइंट वही है जिसे हम टूटता तारा कहते हैं ना। साइंस बताती है कि वो सितारा है ही नहीं, वो तो मीटियोर है। खला में कोई छोटा सा पत्थर या धूल का जर्रा जब वो जमीन की फिजा में दाखिल होता है ना, तो रगड़ से जल उठता है, हमें एक लकीर सी नजर आती है। तो कुरान में जो रोशन शोला शिहाबे मुबीन का जिक्र है, वो इस मीटियोर से ज्यादा मिलता जुलता लगता है, किसी असली सितारे से नहीं। तो साइंस कहती है सितारे मिसाइल नहीं हो सकते, और टूटते तारे असल में सितारे नहीं बल्कि पत्थर हैं। ये तो वाज़ेह फ़र्क है। अच्छा, अब उन लोगों का क्या कहना है जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते या जो सेक्युलर नुक्ता नज़र से देखते हैं, उनकी क्या तनकीद है इन आयात पर? जो नाक़िदीन हैं, चाहे वो सेक्युलर मौर्रिख हों या साइंसदान, वो इन आयात को एक अलग ही एंगल से देखते हैं। उनका पहला इतराज़ ये होता है कि ये जो ख्याल है ना कि आसमान महफूज है और शैतानों को मार भगाया जाता है, ये सिर्फ कुरान में नहीं है। अच्छा, और कहाँ है? उनका कहना है कि पुराने ज़माने में, ख़ास तौर पर मेसोपोटामिया यानी बाबिल वगैरह में और ईरान में ज़रतुश्ती मज़हब में इससे मिलते जुलते तस्वुरात पहले से मौजूद थे। वहाँ भी आसमान को मुक़द्दस समझना और बुरी ताकतों को ऊपर जाने से रोकने की बातें मिलती हैं। तो वो कहते हैं कि कुरान कोई नई बात नहीं बता रहा, बल्कि अपने ज़माने के जो आम तस्वुरात थे ना, उन्हीं को दोहरा रहा है, और वो तस्वुरात साइंसी तौर पर ठीक नहीं थे। यानी वो उसे एक तारीखी तसलसल के तौर पर देखते हैं। जी। दूसरा बड़ा एतराज़ जो इसी से जुड़ा है, वो है साइंस से टकराव। वो कहते हैं कि अगर आप लफ्ज़ी मतलब लें जैसे पुराने उलमा ने लिया, तो ये बात आज की साइंस के मुताबिक गलत है। तो जो लोग मज़हब को नहीं मानते, उनके लिए ये इस बात का सबूत है कि कुरान इंसानों की लिखी हुई किताब है जो अपने वक्त के इल्म तक महदूद थी। और जो आजकल के मुस्लिम उलमा नई तशरीहात करते हैं, जैसे शहाब को मीटियोर कहना, इस बारे में क्या कहते हैं नाक़िदीन? वहीं पर उनका तीसरा एतराज़ आता है। वो इसे कहते हैं रेट्रोफिटिंग, यानी बाद में मतलब फिट करना। रेट्रोफिटिंग? हाँ, मतलब ये कि जब मुसलमानों ने देखा कि पुराना लफ्ज़ी मतलब तो साइंस से टकरा रहा है, तो उन्होंने अल्फाज के नए माने निकालने शुरू कर दिए, या कहा कि ये तो इस्तिआरा है ताकि कुरान गलत साबित ना हो। नाक़िदीन कहते हैं कि भाई 7वीं सदी के अरब ने तो नुजूम से सितारे ही समझा होगा ना, मीटियोर थोड़ी समझा होगा। ये तो बात की कोशिशें हैं साइंस से मुताबिकत पैदा करने की। ये भी एक अहम नुक्ता है। कोई और एतराज़ भी है उनका? एक सवाल वो मजहबी या फ़िलसफ़ियाना सतह पर भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि खुदा तो कादिर मुतलक है,
हर चीज पर कुदरत रखता है, उसे आसमान बचाने के लिए ऐसे मिसाइल सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्या उसका हुक्म काफी नहीं? ये एक थियोलॉजिकल सवाल है कि खुदा को ऐसे जराए की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये तो हो गई तनकीदें और साइंसी मुश्किलात। अब आते हैं जवाब की तरफ। आजकल के जो मुस्लिम उलमा हैं, दानिश्वर हैं या जो इस्लाम का दिफा करते हैं, वो इन सब बातों का क्या जवाब देते हैं? उनकी क्या तशरीहात हैं? जी, आजकल के मुस्लिम मुफक्किरीन ने ना इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। एक बड़ा आम तरीका तो ये है कि वो अरबी ज़बान की गहराई और लचक पर जोर देते हैं। जुबान की लचक, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि अरबी में एक लफ्ज़ के कई माना हो सकते हैं। जैसे नज्म, इसका मतलब सितारा भी है, लेकिन कोई भी चमकने वाली आसमानी चीज़ भी हो सकता है। इसी तरह रुजूम यानी फेंकी जाने वाली चीज़ें, तो वो कहते हैं कि ये तफसील सितारों से ज़्यादा मीटियोर्स पर फिट बैठती है। कुछ उलमा तो आयत 67.5 की ग्रामर में जाते हैं कि वहाँ जो हुम यानी उन्हें का लफ्ज़ है वो मसाबी यानी चिरागों, सितारों के लिए नहीं बल्कि रुजूम के लिए है। यानी सितारे सजावट के लिए अलग हैं और ये मारने वाले मिसाइल मीटियोर्स अलग चीज़ हैं। अच्छा, ये तो जुबान और ग्रामर की बात हो गई। कोई और तरीका भी है? जी हाँ, एक बहुत अहम दलील जो शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है मुशाहिदाती ज़ुबान यानी फिनोमेनोलॉजिकल लैंग्वेज। ये क्या होती है? इसका मतलब है कि कुरान चीज़ों को वैसे बयान करता है जैसे वो ज़मीन से देखने वाले को नज़र आती हैं। अब रात को अगर कोई आसमान में एक तेज़ रोशनी की लकीर गिरती हुई देखे यानी मीटियोर, तो उसे क्या लगेगा? यही ना कि कोई रोशन शोला है या टूटता तारा है जो किसी का पीछा कर रहा है। तो कुरान यहाँ साइंस नहीं बता रहा बल्कि उस मंजर को इस्तेमाल करके अल्लाह की कुदरत और हिफाजत का एहसास दिला रहा है। यानी कुरान साइंस की किताब नहीं, हिदायत की है, और जुबान भी वैसी इस्तेमाल करता है जो आम आदमी समझ सके। बिल्कुल। तीसरा दिफाई नुक्ता है गैब का पहलू। ये उल्मा कहते हैं भाई शैतान, फरिश्ते, इनकी लड़ाई, ये सब तो गैब की बातें हैं, मेटाफिजिकल हैं। ये हमारी मादी दुनिया के कवानीन के मुताबिक नहीं चलते। तो जो मीटियोर हमें नजर आते हैं, हो सकता है वो इस गैबी जंग का कोई ज़ाहिरी निशान हो, कोई अलामत हो, खुद जंग ना हो। यानी साइंस का दायरा अलग, मजहब का अलग। साइंस गैब पर बात नहीं कर सकती। जी, यही मौक़िफ़ है। चौथा तरीका है तमसीली या इस्तिआराती तशरीह, मतलब एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन। कुछ जदीद मुफक्किरीन हैं जैसे इंडोनेशिया के कुरैश शहाब, वो कहते हैं ये सारा मंजर ही एक तमसील है। शैतान से मुराद शायद झूठ है, वहम है, गलत अकीदे हैं, और सितारे या शहाब जो हैं वो वही की रोशनी, इल्म, अक्ल की दलील हैं जो उन गलत बातों को रद्द करती हैं, उन्हें भगा देती हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग तशरीह हो गई। क्या कोई ऐसी तशरीह भी है जो इसे साइंस से जोड़ती हो, मतलब साइंसी मौजिज़े के तौर पर? हाँ, एक मकतबा फ़िक्र वो भी है, साइंसी एजाज वाला, जैसे डॉक्टर ज़गलूल अल-नज्जार हैं या पहले मॉरिस बुकाइल थे। वो कहते हैं कि कुरान में जो करीब तरीन आसमान, अस्समाउद्दुनिया, इससे मुराद असल में ज़मीन की फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर है, और रुजूम यानी मिसाइल वो मीटियोर्स ही हैं। अब चूंकि मीटियोर्स फ़िज़ा में आकर जलते हैं और ज़मीन को नुकसान से बचाते हैं, तो गोया कुरान ने 1400 साल पहले फ़िज़ा का ये हिफाजती रोल बता दिया। ये एक साइंसी मौजज़ा है। अच्छा, लेकिन ये तशरीह बहुत से दूसरे मुस्लिम उलमा में इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं है। इसे थोड़ा खींचा तानी समझा जाता है। और उन सब मुख्तलिफ तशरीहात के बावजूद क्या वो इस बुनियादी पैगाम पर भी जोर देते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी? जी बिल्कुल, ये बात अहम है। तकरीबन तमाम जदीद मुस्लिम मुफक्किरीन, चाहे वो लुग़वी मानी लें, इस्तिआराती लें या साइंसी, वो इस बात पर ज़रूर इत्तिफाक करते हैं कि इन आयात का असल मकसद इलाहियाती है, थियोलॉजिकल है, यानी अल्लाह की कुदरत, कायनात का नज़म और सबसे अहम वही का महफूज होना, यही मरकजी नुक्ता है। ठीक है, तो अब हमने पुरानी तफसीर भी देख ली, साइंस का जाविया भी, तनकीद भी, और आजकल के जवाबात भी। इतने सारे अलग अलग नजरियात हैं। इन सबको मिलाकर देखें तो क्या समझ में आता है? कोई खुलासा, कोई मुश्तरक बात? देखें, एक बात तो शायद सब मानेंगे, चाहे वो मानने वाले हों या ना मानने वाले, कि ये आयात हैं बड़ी पावरफुल।
बहुत मौसर तरीके से खुदा की बनाई हुई कायनात की अजमत, उसके निज़ाम और उसकी हिफाजत का तस्वर पेश करती हैं। और मुख्तलिफ लोगों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है, जो मानते हैं उनके लिए और जो नहीं मानते उनके लिए। जो अहले ईमान है उनके लिए तो बुनियादी पैगाम आज भी वही है कि अल्लाह की बात, उसकी सच्चाई महफूज है, वो बदलती नहीं। और जो आज हमें मीटियोर्स के बारे में पता चला है, उससे वो इस इलाही हिफाजत के निज़ाम की एक मज़ीद तफसील समझ सकते हैं कि अल्लाह ने कायनात में कैसे कैसे इंतजामात किए हैं। इससे तो ईमान और पक्का हो सकता है। और जो तनकीदी नज़र से देखते हैं, उनके लिए ये आयात 7वीं सदी के अरब कल्चर और उनकी कायनात की समझ का एक अक्स है। वो कहेंगे कि कुरान की असल ताकत उसकी साइंस में नहीं, बल्कि उसकी इखलाकी, रूहानी और समाजी तालीमात में है, जिसने तारीख बदली। अपने ज़माने की ज़बान में, अपने इस्तिआरों में कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जो हमेशा के लिए अहम होती है। शायद ये सितारों को मिसाइल बनाना भी इसी तरह की एक बात थी। हिफाजत और पाकीज़गी का एक ज़बरदस्त इस्तिआरा जो आज भी असर रखता है, भले ही हमारी कायनात की समझ बिल्कुल बदल गई हो। बिल्कुल। और ये जो मुख्तलिफ नज़रियात है ना, इनके दरमियान बातचीत का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत, या कौन जीता कौन हारा। असल मकसद ये होना चाहिए कि हम खुद उस टेक्स्ट को, कायनात को और इंसान कैसे सोचता है उसे ज़्यादा गहराई से समझें। ये देखना कि एक ही बात से लोग कैसे कैसे मतलब निकालते हैं, ये खुद सीखने की चीज़ है। और शायद आखिर में एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सबके लिए सोचने को। जी, कि ये कितनी अजीब बात है ना कि कायनात के बारे में पुराने तसव्वुरात जो आज साइंस के हिसाब से शायद ठीक नहीं, वो भी इंसान के बड़े बड़े सवालों के जवाब देने में मदद कर सकते हैं। जैसे कायनात में हमारा क्या मुकाम है, हम महफूज हैं या नहीं, हमारा गैब से क्या ताल्लुक है। इन पुराने तसव्वुरात में भी इन सवालों के लिए ताकतवर निशानियाँ, ताकतवर इस्तारे मिल जाते हैं, है ना। इस पर गौर किया जा सकते हैं।